A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we discussed a lots of the important topic related to the class 11th accountancy part B. In this section, in the part B, we discussed the preparation of the financial statement of sole proprietorship with adjustment and without adjustment, as well as we discussed the practical problem related to the incomplete record. In such types of the records, firstly we discussed what the meaning of the incomplete record. Thereafter we discussed how we will calculate the profit from incomplete record without adjustment, and thereafter we will discuss the questions related to the calculation of the profit from the incomplete record by the statement of affair method. You know very well there are basically two methods by which we calculate the profit or loss from the incomplete record. The first method is the capital comparison method or statement of affair method, and the second method is a conversion method. So now, after completing the two important chapter of the section B, part B of class 11th accountancy, let's we move to the another important topic of your syllabus, that is in computerized accounting system. We already discussed about this topic, that is in what is a computerized accounting system, what are the advantages and disadvantages of computerized accounting system, what are the important component of the computerized accounting system. So now let's we move to the discuss the few of the important topics and narration related to the computerized accounting system. As you can see that firstly we discussed what is a computerized accounting system. You know very well, an accounting information system that possesses the financial transaction and the events as per the generally accepted accounting principle to produce reports as per the user's requirement is refers to as a computerized accounting system. यानी एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें हम कंप्यूटर की हेल्प लेते हैं और गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यानी जिस अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से हम कंप्यूटर की हेल्प की बेसिस से हम एक अकाउंटिंग सिस्टम जनरेट करते हैं जो कि सारे अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन को इंक्लूड करता है, एज वेल एज उस अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से हम रिपोर्ट जनरेशन का भी काम करते हैं। सो व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? In short way, we can say that in accounting information system, that processes the financial transaction, and events as per the GAAP means generally accepted accounting principle to produce reports as per the requirement of related users. So आपने क्लियरली देखा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जो में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की नॉलेज, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम हम जनरेट करते हैं जिसकी हेल्प से हम बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और उससे एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। और रिपोर्ट को जनरेशन करने का दो बेसिक होता है, एक ऑल दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं और उस रिपोर्ट को
रिलेटेड यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं। सो बेसिकली अगर शॉर्ट वे में आपसे कोई पूछे कि सर टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट computerized accounting system is an accounting system or accounting information system that processes the financial transactions and events as per the GAAP, as per the generally accepted accounting principle to produce report as per the requirement of the related users. So this is the basic feature of the basic concept of the computerized accounting system. The next point is a feature of computerized accounting system. First is online input and storage of accounting data. इसमें हम online क्या कर सकते हैं, डाटा को इनपुट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. The second feature is print out of purchase and sale invoices. हम अपने बिजनेस में होने वाले purchases and sales का इनवॉइस प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन. थर्ड, लॉजिकल स्कीम फॉर कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजेक्शंस. हम अपने अकाउंट्स को और अपने ट्रांजेक्शन्स को, अकाउंट्स को इन ट्रांजेक्शन को कोडिफाई कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं, उसको एक सिंबल प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इजीली अकाउंट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं. इंस्टेंट रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का कि विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम एक इंस्टेंट रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के लिए. मैनेजमेंट को जिस तरह की नीड है उसके लिए हम उस तरह का रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक स्टॉक स्टेटमेंट कि हमारे पास कितनी स्टॉक है, अगर स्टॉक अवेलेबल है तो किस तरह के स्टॉक्स हमारे पास कितनी क्वांटिटी के हैं, कौन से स्टॉक हमारे पास लेजर क्वांटिटी के हैं, यानी जो रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर सकते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, एज वेल एज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी रिटर्न या आईटी रिटर्न का एक प्रॉपर लेआउट प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड वी फाइंड आउट all the things very easily. Okay, so you can see that with the help of the computerized accounting system we prepared the report as per the requirement of the users on the basis of the GAAP, and in this accounting system we take the help of the computer and uses and develop a very important accounting information system which possesses the financial transactions and events of the businesses. Okay, so let's move to the next topic. The next topic is the advantages of the computerized accounting system. Okay, advantages of computerized accounting system. बेसिकली हम लोगों ने इस पॉइंट पे डिस्कस किया है, लेकिन इस पे जो हेडिंग्स है कि कौन कौन सी हेडिंग्स हमें लिखनी होगी एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन कि व्हाट आर द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. सो सबसे पहली एडवांटेजेस तो सबसे पहले आप ही बता दोगे सर, स्पीड. इफ वी आर कंपेयर द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम विद द computerized accounting system, so we find that speed is a very important part of the computerized accounting system. It is a very biggest advantage of the computerized accounting system because of दोनों में जो स्पीड है वो स्पीड किसकी ज्यादा अच्छी है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है. अगर हम मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा लेबर लगता है, बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आपको टाइम कम लगता है क्योंकि आपको सिर्फ दो ही चीजें मैनुअली करनी है. ऑल द थिंग्स आर डन बाय द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. सेकेंड अगर हम लोग बात करें, सेकेंड इज एन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, सो एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता से. इट मींस, और शुद्धता मींस कि डाटा इज फ्री फ्रॉम द एरर. स्पीड मींस कितना तेजी से काम हो रहा है, यानी टाइम कम लगना. एक्यूरेसी को यहां पर आप लोग ऐसे कह सकते हो कि जो भी आप इंफॉर्मेशन जनरेट करो विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज फ्री फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ द एरर एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम. मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली अगर हमने डाटा भी सही एग्जैक्टली डाला, हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे जनरल लेजर ट्रायंगल्स बनाने में किसी प्रकार का कोई एरर हो जाए.
बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसमें एक्यूरेसी रहती है. क्यों रहती है? इसमें एक्यूरेसी तभी एब्सेंस होगी व्हेन वी आर इंटर द रॉन्ग डाटा. यानी अगर ह्यूमन बीइंग्स ने गलत डाटा इंटर कर दिया तो ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम गलत रिपोर्ट जनरेट करेगा. यानी वो गलती कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की नहीं है, वो भी एरर किसका है? ह्यूमन बीइंग का. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट accuracy is the most important advantages of the computerized accounting system, because of computerized accounting system खुद से कोई गलती नहीं करता. ये गलती तभी करेगा when we enter the wrong data in the utility software. इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच आपको याद होगा, गीगो अप्रोच. मैंने आपको बताया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट. यानी आप कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा. उसी तरह से अगर आपने डाटा गलत एंटर किया कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, तो जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होकर आएगी, जो इंफॉर्मेशन आउटपुट की फॉर्म में आएगी, वो गलत ही आएगी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की हेल्प से व्हेन वी ड्रॉ इंफॉर्मेशन, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट एन इंफॉर्मेशन फॉर द डिसीजन मेकिंग, इट इज 100% एक्यूरेट. If is there any kind of the inaccuracy, so it is all the responsibility of the manual accounting system. The third advantages of the computerized accounting system is a reliability. Reliability का मीनिंग बहुत ही अलग अलग है. बेसिकली रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट. ट्रस्टेबिलिटी से होता है, मतलब हम कितना विश्वास कर सकते हैं. हिंदी में कहते हैं रिलायबिलिटी को विश्वसनीय. यानी कि अगर हम कहें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जो डाटा एक्यूरेट है, तो उसमें हम रिलायबल भी हो सकते हैं, उसमें विश्वास भी कर सकते हैं. बट रिलायबिलिटी का बहुत ही बड़ा वर्ड मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी रिपोर्ट बार बार प्रिपेयर करें विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड द डाटा विल बी सेम, सो रिजल्ट विल बी सेम. रिजल्ट भी सेम होना चाहिए. ये बेसिक मतलब होता है रिलायबिलिटी का, कि अगर डाटा सेम है तो रिजल्ट भी सेम होना चाहिए. अगर डाटा डिफरेंट है तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर डाटा की टेंडेंसी सेम है तो रिजल्ट भी सेम होगा. ये होता है रिलायबिलिटी का मतलब. तभी वो सिस्टम रिलायबिलिटी के फॉर्म में आता है, अदरवाइज नहीं आता. यानी जब आप किसी भी डाटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करते हो और वो इंफॉर्मेशन अप्रोक्सीमेटली हर टेंडेंसी में सेम आ रही है. अगर आपने फर्स्ट ईयर की जो डाटा है, सेकेंड ईयर की डाटा है, थर्ड ईयर की डाटा है, फोर्थ ईयर की डाटा है, और डाटा की टेंडेंसी लगभग सेम है, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन है या रिजल्ट है वो सेम आएगा अगर उसमें रिलायबिलिटी है. तो बेसिकली इन शॉर्ट में वी कैन से दैट कि रिलायबिलिटी का मतलब ट्रस्टेबल कब होगा? कोई भी सिस्टम ट्रस्टेबल तब होता है जब उसमें सिमिलर डाटा के सिमिलर रिजल्ट आए. अगर सिमिलर डाटा के डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, इट मींस वो सिस्टम रिलायबल नहीं होता है. ठीक है, तो आपकी जो डाटा है वो सेम होने चाहिए, तभी जाकर आपका सिस्टम रिलायबल होगा. और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम तो एक डाटाबेस होता है, एक कंप्यूटराइज होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, तो वो रिलायबल होगा ही होगा. क्योंकि अगर आप उसमें डाटा को थोड़ा ट्विस्ट करके भी इंटर कर देंगे तो रिजल्ट विल बी सेम. नंबर 4 इज अ इफिशियंसी. ये तो समझाने की जरूरत नहीं है. इफिशियंसी तो होता ही है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि टाइम भी कम लगाता है और रिसोर्सेज भी कम यूज करता है. यानी व्हेन वी कंपेयर द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, तो बिजनेस को कई तरह के मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में मैन पावर भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है. यानी कि एफर्ट भी कम लगता है, टाइम भी कम लगता है. मैन पावर के साथ साथ आपका लेबर भी कम लगता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, सो वी कैन से दैट इफिशियंसी मीन्स कि लेबर भी कम लगना, टाइम कम लगना, सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इफिशिएंट माना जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट पॉइंट by which we analyze the advantages of the computerized accounting system, it is an legibility. Legibility means it is a very clear full information. यानी कि with the help of the computerized accounting system we convey the information to the interested user in the clear form. यानी
लेजिबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर हम कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सो वो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती, बल्कि वो और भी चीजों को क्लियर करती है, इंफॉर्मेशन को फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द कंफ्यूजन, ताकि बेसिकली लोग उसका अलग अलग मीनिंग ना निकालें। अगर हमने कोई रिपोर्ट जनरेट की, मिस्टर एक्स के पास रिपोर्ट गई और उसने उसका अलग मीनिंग क्रिएट किया, और मिस्टर वाई के पास भी उसने उस रिपोर्ट का अलग मीनिंग क्रिएट किया। सो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से जो भी हम डाटाबेस या जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, इट इज वेरी क्लियरफुल एंड इट इज कॉल्ड अ लेजिबिलिटी, मीन्स it is free from any kind of the confusion. It must be a clear. The next advantages of the computerized accounting system is a up to date. ये तो टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि in the computerized accounting system we find all the information in the up to date form. up to date form का मतलब होता है कि अगर हम मैनुअली अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो डाटा को इंटर करने में टाइम लगता है। सपोज अगर आप किसी भी बिजनेस में मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और उनसे पूछे जाए कि बताओ टुडे आपके स्टॉक कितने, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आज का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आज आपका बिजनेस का करंट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो वी कैन नॉट फाइंड इट, बिकॉज मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में किसी काम को करने में टाइम लगेगा और हम चीजों को अप टू डेट इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपको अप टू डेट रहना है, करंट के साथ चलना है, सो उसके लिए आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता है, सीधे डाटा को इंटर करो और डाटा को आपने इंटर किया, वो ऑटोमेटिक आपका पूरा स्टॉक स्टेटमेंट, पूरा पेरोल स्टेटमेंट और आपका जीएसटी फॉर्म, जीएसटी रिटर्न, आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ऑल द थिंग्स वे गिवन बाय द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाओ, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटे से रेस्टोरेंट जहां पे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और उससे कह दो कि मेरे यहाँ समथिंग डेट पे पार्टी है और मेरा ये मेनू रहेगा, बताइए कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो वो आपको बताने में लगभग आधा घंटा, 1 घंटा, और हो सकता है कहेंगे सर कल बताएंगे आपको, बिकॉज इन द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम स्पीड भी कम है और इन्फॉर्मेशन भी आपको अप टू डेट नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वही रेस्टोरेंट अगर आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता है तो वो उसको कुछ करना नहीं, उसे वो जो प्रोडक्ट आपने जो ऑर्डर किया है वो उस प्रोडक्ट का कोड एंटर करेगा इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और वो तुरंत आपको बता देगा कि सर अगर आप इतना ऑर्डर करेंगे तो आपको इतना टोटल कॉस्ट पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन चाहिए, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज अ वेरी बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉर द बिजनेसमैन एंड एज वेल एज फॉर द कस्टमर। एंड नेक्स्ट वन इज अ स्टोरेज। एक छोटा सा बहुत एग्जांपल है स्टोरेज को लेकर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में। अगर आपके पास लैपटॉप हो या मोबाइल हो, तो मुझे लगता है कि आपके घर में जितनी बुक नहीं होगी उतनी ज्यादा आपने पीडीएफ में बुक डाउनलोड की होगी। जितना आपके घर में डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी में नहीं होंगे, उतना हो सकता है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में सॉफ्ट कॉपी में आपके पास डाटा अवेलेबल होंगे या डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल होंगे। सो इट मीन्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में हमें चीजों को मैनुअली प्रिपेयर करना पड़ता है और बेसिकली हमें डिपेंड करना पड़ता है ऑन द हार्ड कॉपी। बट इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वी डिपेंड ऑन द सॉफ्ट कॉपी इंफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट उसको कम स्पेस की जरूरत पड़ेगी और वो इजिली एक्सेसिबल होगी, इजिली फाइंडेबल होगी, और इसलिए स्टोरेज इज अ वेरी बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि हम बिजनेस के कई साल की इंफॉर्मेशन, मैनी ईयर, 10, 15, 20 या हो सकता है अगर आपका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छा है तो यू विल केप्ट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। जब से आपने कंपनी फॉर्मेट की है तब से आपके पास वो डाटा स्टोर पड़ा होगा। इट मीन्स इन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वी store a data for a long time. Okay, so let's we move to the some of the limitation of the computerized accounting system. क्योंकि देखिए किसी चीज का पॉजिटिव होता है तो किसी चीज का नेगेटिव भी होता है। अगर हम कहें कि all the things are favorable in the computerized accounting system, तो it is not fully correct, because all the things have a positive effect and all the things have their negative effects. So that's why
let's we discuss about the second point, that is a limitation of computerized accounting system. So what are the limitation of computerized accounting system? Let's we discuss about it. First of all, what are the limitation? What is the exact meaning of the limitation? So limitation means ड्रॉबैक ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग सिस्टम. किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम का जो एक ड्रॉबैक होता है, ड्रॉबैक मतलब कह लो, या उस अकाउंटिंग सिस्टम को एडॉप्ट करने में जो प्रॉब्लम आती है, एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम आती है, विच आर नोन एज द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. So basically, what are the meaning of the limitation of the computerized accounting system? The drawback, difficulty to implement in the computerized accounting system. So what are the limitations? So one by one. The first limitation is cost of training. Cost of training. अगर कहना गलत नहीं होगा, so we can say that if we are talking about the computerized accounting system, so इसके लिए एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेंड होना पड़ेगा. बिना ट्रेनिंग की आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते, ऑपरेट नहीं कर सकते. सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक एंड लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम. एंड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट वी ऑकर्ड अ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग. हमें ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. कॉस्ट मीन्स खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करना है. ट्रेन करने के लिए लगेगा पैसा. द सेकेंड वन इज द स्टाफ ऑपोजिशन. बेसिकली यू नो वेरी वेल, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. बट यू नो वेरी वेल, अगर आपने रेगुलर स्टाफ को रिक्रूट किया हुआ है और कोई स्टाफ एक ऐसे एज पे है जहां पे वो नई चीजें सीखने में उसे प्रॉब्लम आएगी, सो इन दिस सिचुएशन स्टाफ विल बी अपोज सच काइंड ऑफ द सिस्टम. सो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बेसिकली जो स्टाफ हैं वो ऑपोजिशन करते हैं, अपोज करते हैं बेसिकली द ओल्ड स्टाफ, सीनियर स्टाफ, बिकॉज दे नो दे कैन नॉट हैंडल ऑल द थिंग्स वेरी इजली. वो इजली चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए वो बेसिकली उस काम को अपोज करते हैं, क्योंकि वो उनके लेवल से थोड़ी ऊपर होती है. सो इन द स्टाफ ऑपोजिशन create a lots of conflict in the management, as well as it result a negative result towards the operation of the business. और basically जब senior staff management से disturb होता है, तो इन situations में कभी कभी business के operation activities पे काफी बड़ा negative impact देखने को मिलता है. The next one is the third one is a disruption as well as सिस्टम फेलियर. कभी कभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है. फेलियर मीन्स जब अगर हम छोटी सी बात करें कि अगर आप ऑनलाइन सिस्टम पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम, तो अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास के दौरान ड्यूरिंग अगर नेटवर्क इशू हो गया या आपका डिवाइस ही खराब हो गया, फेल हो गया, सो इस सिचुएशन में आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज not better much with the manual accounting system. The fifth one is a breach of security. Sometimes business में जो computerized accounting system होता है उसको हैक करने की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है. हो सकता है उसका जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरे अननोन एम्प्लॉय जो कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का जो कहते हैं ना सीक्रेट पता करने के लिए हमारे यहाँ ज्वाइन हुआ था, तो वो हो सकता है कभी कभी सिक्योरिटी को ब्रीच कर लेता है, यानी कि चोरी कर लेता है. और कभी कभी जो हमारे डाटा हैं वो मिसयूज हो जाते हैं इन केस ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस. और अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो हर चीज का प्रॉपर सेक्शन है, फाइल निकलवाने का एक टॉपिक तरीका होगा, तो वहां तक वो फाइल निकलवा नहीं पाएगा. लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, क्योंकि वो चीजें इजिली असेसिबल होती हैं, इजिली फाउंडिंग होती है,
दैट्स वाई कभी कभी ये तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एज वेल एज द ill effects on health। बेसिकली जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है वो कभी कभी हमारे हेल्थ, कभी क्या बेसिकली हेल्थ पर ज्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अगर यू आर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्ट विद द मशीन्स, सो कहीं कहीं आपका साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, वो डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, क्योंकि यू आर द वर्किंग विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, you are not interacting with the other peoples, other human beings. In this situation आपका जो माइंड है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, नैरो हो जाता है। सो इन दिस सिचुएशन ये आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालता है। सो दीज आर द वेरियस वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इफ यू आर डूइंग द वर्क कॉन्टिन्यूसली विद द मशीनरी, विद द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सो ये आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, क्योंकि उसके रेज भी अफोर्ड डालते हैं और आपका जो मेंटेलिटी है, माइंड है, वो भी कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट की तरफ काम करता है। सो दीज आर द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज इन कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, स्टाफ ऑपोजिशन, डिस्ट्रप्शन, सिस्टम फेलियर, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी एंड इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। ओके, सो at the end of today's video, let's we discuss about the short information about the generic consideration before sourcing and accounting software। so उसको हम लोग कल भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। so पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, what do you mean by the sourcing of accounting software। accounting software is an integral part of computerized accounting system। An important factor to be considered before acquiring accounting system is the accounting expertise of people responsible in organization for accounting work। The need of for accounting software arises in two situations. First, when the computerized accounting system is implemented to replace the manual system, and number second, when the current computerized accounting system needs to be replaced with the new one in view of changing needs। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। ये मैंने इसलिए पढ़ दिया ताकि आपको पता चल जाए कि हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। सो इन द सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अगर हम लोग बात करें इन द सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, if we are talking about the, so you know very well, accounting software कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का एक बेसिक पार्ट है। यानी सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कह लीजिए या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कह लीजिए, सेम थिंग इज देयर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी व्हाट इज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर we in the accounting software is an integral part of computerized accounting system। An important factor to be considered before acquiring accounting sector is the accounting expertise of people responsible in the organization for accounting work। यानी अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग के लिए सबसे पहले हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड को समझना जरूरी है कि what are the need of the accounting software। so need कब होती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की? the need of accounting software are become very important the first situation when, मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ, सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम किसकी सोर्सिंग की बात करें? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सोर्सिंग का मतलब किससे होता है? नीड से होता है। यानी क्या नीड है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। कब हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नीड होती है? पहला, जब हम when we will follow computerized accounting system। सो मैंने आपके इजली इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि सोर्सिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब कब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बिजनेस में इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसकी दो सिचुएशन होती है।
पहला, व्हेन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिप्लेस द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को से हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को रिप्लेस कर रहे हो, अपने बिजनेस से मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम हटा रहे हो। और दूसरा, व्हेन ओल्ड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिप्लेस बाय द न्यू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जब पुराने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से हम पुराने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय द न्यू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सो उसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड टेक केयर।